அருள்மிகு லோபமுத்ரா சமேத அகஸ்திய பெருமான். மூலவர் அருள்மிகு சித்தி புத்தி சமேத நித்யானந்த கணபதி. மூலவர் அருள்மிகு சுந்தர வணிபேஸ்வர பெருமான். மூலவர் அருள்மிகு சுந்தர வடிவாம்பிகை அம்பாள். மூலவர் அருள்மிகு வள்ளி தேவசேனா சமேத சிவசுப்பிரமணியர். மூலவர் அருள்மிகு லக்ஷ்மி நாராயண பெருமாள். உற்சவர் அருள்மிகு சுபமங்கள கல்யாண வரதராஜ பெருமாள். அருள்மிகு தட்சிணாமூர்த்தி அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன். அருள்மிகு சக்கரத்தாழ்வார் யோக நரசிம்மர். அருள்மிகு ஐயப்பன். அருள்மிகு காலபைரவர். அருள்மிகு சண்டிகேஸ்வரர். தனிச்சன்னதி அருள்மிகு நவக்கிரகங்கள். திருக்கோயில் சிறப்பு நலன் தரும் நவக்கிரகங்கள் வட்ட வடிவமாக அவரவர் வாகனங்களில் அமைந்திருக்கின்றார்கள். சுப்பிரமணியர் குரு பகவானை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த குரு பகவானை வணங்கினார் குருவருள் பெறலாம். நித்யானந்த கணபதி சுக்கிர பகவானை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். இவரை வெள்ளிக்கிழமை வழிபட்டால் சகலவித தோஷங்கள் நீங்கி செல்வச் செழிப்பை பெறலாம். உற்சவமூர்த்தியான சுபமங்கள கல்யாண வரதராஜ பெருமாளுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் திருவோண தீப வழிபாடும் நவ கலச அபிஷேகமும் அமைகின்றது. அகஸ்திய பெருமானின் அருள் நாடிகள் இத்திருக்கோயிலில் அமைந்துள்ளது. பெருமைமிகு தமிழகத்தில் தலைநகராம் சென்னை மாநகரில் தியாகராய நகர் என்ற இடத்தில் அமைந்தருளியுள்ளது அருள்மிகு அகஸ்தியர் திருக்கோயில். அருள்மிகு லோபமுத்ரா சமேத அகஸ்திய பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கின்ற திருக்கோயில். அருள்மிகு அகஸ்தியர் திருக்கோயிலில் அருள்மிகு சித்தி புத்தி சமேத நித்யானந்த கணபதியின் திருக்கோலம். ஆனந்தம், பரமானந்தம், பேரானந்தம், சித்தானந்தம் அனைத்தையும் இப்பெருமானை வணங்கி வழிபட்டால் நித்தியமும் நித்யானந்தத்தை நல்கும் பெருமான் சித்தி புத்தியுடன் எழுந்தருளி இருக்கின்றார். சித்தி இச்சை. அந்த இச்சையை தன் புத்தியினால் சீர்தூக்கி ஆராய்ந்து விநாயகப் பெருமானை வழிபடுதல் வேண்டும்.
அந்த இச்சையானது ஆண்டவன் மீது அமைகின்ற பரிபூரண பக்தி. பரிபூரண பக்தி ஒரு பக்தனுக்கு அமைந்தால் அந்த பக்தனுக்கு அனைத்தும் சித்தியாகும். புத்தி நேர்கோட்டில் அமைந்திருந்தால் மட்டுமே. அகத்தியப் பெருமானின் அருள் நாடிகள் அமைந்தருளிய திருக்கோயில். விநாயகப் பெருமானுக்கும் வியாச பகவானுக்கும் சம்பந்தம் அமைந்தது போல விநாயகப் பெருமானுக்கும் அகத்தியருக்கும் சம்பந்தம் அமைந்தருளி இருக்கின்றது. அது ஒரு யுகக்காலம். பர்வதராஜன் குமரி பார்வதியை சிவபிரான் இமயத்திலே திருமணம் செய்து கொள்ளும் நேரம். அனைத்து தெய்வங்களும் தேவாதி தேவர்களும் இமயத்தில் குழுமியிருந்தனர். அதன் காரணமாக வடபுலம் தாழ்ந்து தென்புலம் உயர்ந்தது. இதனை சீர் செய்யும் பொருட்டு சிவபிரான் அகத்திய முனிவரை அழைத்து தென்னாடு செல்க என்று அருளினார். தண்ட கமண்டலத்துடன் புறப்பட்ட அகஸ்தியர் தென்னாடு நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த போது விந்திய மலை வானுயர உயர்ந்து அவரை தடுத்தது. விந்திய மலைக்கு தான் இந்த உலகத்திலேயே மாபெரும் மலை என்ற அகங்காரம் அமைந்திருந்தது. அந்த அகங்காரத்தை போக்குவதற்காக அகத்திய பெருமான் விந்திய மலையின் மீது ஒரு திருக்கரத்தை பதித்தார். அந்த மலை சிறியதானது மட்டுமின்றி அகத்திய பெருமானுக்கு வழிவிட்டது. தென்னாடு நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த அகத்திய பெருமான் ஓர் புனிதமான தலத்தில் அமைந்து சிவநிஷ்டையில் இணைந்திருந்தார். அவர் கமண்டலத்தில் புனித நீர் அமைந்திருந்தது. அந்த நீர் தமிழகத்தில் பெருகி ஓட வேண்டும் என்பதனை தன்னுள் உணர்ந்தார் விநாயகப் பெருமான். ஒரு காக்கை வடிவில் வடிவெடுத்து கமண்டலத்தில் உள்ள நீரை கீழே தள்ளி கொட்டினார். கா விரித்ததால் அதுவே காவிரியானது. காவிரி பெருக்கெடுத்து ஓடி தமிழகத்தில் பாய்ந்தது. காவிரி நீர் தமிழ்நாட்டிற்கும் சொந்தம் என்றதொரு பதிவினை இந்த சம்பவம் விவரிக்கின்றது. विश्वादिधर्यो अभिदिप्स्वो ॐ रथो बृहस्पतिर्विवर्गारथाम् इव तेदिष्ठया तपनी रक्षतस्तपये त्वा निरेदधिरे दृष्टवीर्यम् आविस्तत्कृष्वजरतभुक्त्या अमृगस्पते विपरिलाभो अर्दय बृहस्पते अधियधर्यो अर्घात् द्युमद्विभाति क्रतु मज्जनेषु यद्धीतगच्छवदरतप्रदददः
तस्मादुद्रवीणं धेहि चित्रम् मानस्तेनेभ्यो ये अभिद्रुगस्पते निरामिणो रिपवोन्नेषु जागृधुः आदेवानामोगते विव्रयो हृदि बृहस्पतेन परः साम्नो विदुः विश्वेभ्यो हित्वा भुवनेभ्यस्पतित्वष्टाजरत्साम्नः साम्नः कविः सऋणचिदृणया ब्रह्मणस्पतिर्ध्रुवो हन्ता भगऋतस्य धर्तरि तव श्रिये यजिगीत पर्वतो गवाम् गोत्रबुधसृजो यदङ्गिरया इन्द्रेण युजातमसा परिवृतं बृहस्पतेरपामौब्जो अर्णवम् ब्रह्मणस्पते त्वमस्य जन्दासूक्तस्य बोधितनयं जजिन्व विश्वं तद्भद्रं यतवन्ति देवा बृहत्पदेव विदधे सुवीराः सेमाम विद्धि प्रभृतिं जयिषे जापीदेव नवयामगिरा यथा नो मीढ्वांस्तव ते सखा तव बृहस्पते शीषधस्सोदनो मतिम् योनन्त्वाञ्जनमन्योजसोतादर्दर्मन्युनाशम्बराणिवि प्राच्या आवयदच्युता ब्रह्मणस्पतिराजाविषद्वसुवन्दं विपर्वतम् तद्देवानां देवतमाजकर्त्वमश्रद्धं दृढा व्रदन्नवीडिता उद्गा जलभिनद्ब्रह्मणा बलमगूहतमो व्यजक्षयत् स्वाहा अस्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभियमोजसा गृह्णत् तमेव विश्वे पपिरे स्वर्दृशो बहुसाकं शेषिजुरुत्समुद्रिणम् स नाता काचिद्भुवना भवेत् त्वामाद्भिः शरद्भिर्दुरो वरन्दवः अयतन्दाचरतो अन्यदन्यदिद्याचकार वयुना ब्रह्मणस्पते अभिनक्षतो अभिजेतमानशुर्निधिं पणीनां परमं गुहाहितम् ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्यानृता पुनर्यत भुवायन्ददुदेयुराविषम् ऋतावानः प्रतिचक्ष्यानृता पुनरतातस्थुः कवयो महस्पथगा ते बाहुभ्यां धमिदमग्निमश्मनिनकिशो अस्त्यरणो जगुर्हितम् ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वष्टिप्रतदश्नोति धन्वना तस्य साध्वीर्णवो याभिलस्य निधृचक्षसो दृजगे कर्णयो नयगा ससं नयः सविनयः पुरोहितः सरुष्टुतः स युधि ब्रह्मणस्पते चाक्ष्मो यद्वाजं भरते मतिधरादित्सूर्यस्तपतिरप्यदुर्वृथा विभु प्रभु प्रथमं मेघनावतो बृहस्पते सुविदत्राणिराध्या इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जनामुभये भुञ्जते विजागा यो वरे वृजने विश्वधा विभुर्मगामुरन्वशवदा भवक्षीध स देवो देवान् प्रतिपप्रथे पृथु विश्वे दुता परिभूर्ब्रह्मणस्पते विश्वं सत्यं भगवाना युवो निदापश्चन प्रमीनन्ति व्रतं वाम् अच्छेन्द्र ब्रह्मणस्पति हविर्णोन्नं युजेव वाजिनाजिगादम् उतातिष्ठानो धृण्वन्ति वह्नयः सभेयो विप्रो भरते मदीधना वीळुद्वेषानुवच ऋणवादतिः सखवादी समिधे ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणस्पतेरभवद्यथा वशं सत्यो मन्युर्महि कर्मा करिष्यतः योगाभूता जत्स दिवे विचा भजन्महीव रीतिः शवदादरत्पृथक् ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वः रायस्यावरथ्यो को
वो वयस्पतः वीरेषु वीरा उपबृङ्गिनस्त्वं यदीडानो ब्रह्मणा वेणीवेहम् ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्दासूक्तस्य बोधितनयं जजिन्व विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहद्वरेम विदधे सुवीराः इन्धानो अग्निं वरवद्मनुष्यतः कृतब्रह्मासूषुवद् रातकौ यदित् जातेन जातमति सप्रसृते यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतेः वीरेभिर्वीरान् वरवद्मनुष्यतो गोभिरजिम्बप्रथद्बोधतीत्मना तोकं च तस्य तनयं जवर्धते यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतेः सिन्धुर्नक्षो दशिमीवाङ्गायतो वृषे भवद्रीं रभिवष्ट्योजसा अग्नेरिव प्रसीतिर्नागवर्तवे यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतेः तस्मार्षन्ति दिव्या तश्च तत्सत्त्वभिः प्रथमो गोषु गच्छति अनिभृष्टतविर्हन्त्योजसा यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतेः तस्मायिद्विश्वे धुरयन्तसिन्धवोच्छिद्रा शर्म दधिरे पुरूणि देवानां सुम्ने सुभगः स येधते यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतेः ऋजुरिच्छंसो वनवद्मनुष्यतो ते वयन्निदते वयन्दमभ्यदत् सुप्रावीरिद्वरवत्पृत्सु दुष्टरं यज्वेद यज्ञोर्विभजाति भोजनम् यजस्ववीरप्रवीहिमनायतो भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूर्ये हविष्कृणुष्व सुभगो यथा दधि ब्रह्मणस्पतेरवावृणीमये स इज्जनेन स विषादजन्मदासपुत्रैर्वाजं भरते धनार्भिः देवानां यः पितरमाविवासति श्रद्धामराविडा ब्रह्मणस्पतिम् यो अस्मै हव्यैर्घृतवद्भिरविधत्प्रतं राजानयति ब्रह्मणस्पतेः उरुष्यति मंघसो रक्षति ऋषो ॐ घोश्चेदस्मा उरुचक्रिरद्भूतः तमुज्येष्ठं नवसा हविर्भिः सुचेवं ब्रह्मणस्पतिं गृणीषे इन्द्रं श्लोको महितैर्यस्य शक्तुजो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा इयं वां ब्रह्मणस्पते सुभृक्तिर्ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे अकारी अविष्टं धियो जिघृतं पुरन्धीर्जस्तमर्यो मनुषामरादिः छत्तो हितश्चत्तामुतः सर्वा भ्रूणान् यारुषी अराय्यं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णशृङ्गो धृषन्निः अदो यद्दारुप्लवते सिन्धोः पारे अपूरुषम् तदारभस्वदुर्गणो तेन गच्छवरस्तरम् अग्निर्येन विराजति सूर्यो येन विराजति विराज्येन विराजति तेनास्मान् ब्रह्मणस्पते विराजसमिधं कुरु यत्र बाणाः सम्भरन्ति कुमाराभिशिखा एव तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदिति शर्म गच्छतु विश्वाः शर्म गच्छतु यदिन्द्रब्रह्मणस्पतेभिद्रोहं जरामसि प्रचेतानाङ्गिरसो द्विषतां पात्वं गजः निषुषीद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रदमं गभीराम् न ऋते त्वत्क्रियते किं चलाने महामर्कं मघवन् चित्रमर्च अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेडजोऽयं शिवाभिवर्षणः
आतुरदिन्द्रक्षुमन्दं चित्रं ग्रामं सङ्गृभाय महाहस्ती दक्षिणेन विद्माहित्वा दुविकूर्मिं दुविदेष्णं दुविमघं दुविमात्रमोभिः न हित्वा शूरदेवानमर्ता सोदित्सन्दं भीमन्दगां वारयल्ले येतोऽन्विन्द्रं स्तवामेजानं वस्वस्वराजम् नराधरामर्दिनन्नः प्रस्तोषदुपगादिरक्षवत्सामगीयमानम् अभिराधराजुगुरत् आनो भरदक्षिणेनाभिसव्येन प्रवृज इन्द्रमानो वसोर्निर्भाग् उपक्रमस्मा भरधृषराधृष्णो जनानाम् अदासूष्टरस्य वेदाः इन्द्रय पुरुते अस्ति वाजो विप्रेभिः सरित्वः अस्माभिः सुतं सनुगे सद्यो जुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः वशैश्च मक्षुजन्ते।